नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के हाल ही में आए प्रीपेमेंट चार्जेज डायरेक्शंस 2025 के जरूरी नियमों को समझेंगे। ये रूल्स आपके एग्जाम और डेली बैंकिंग ऑपरेशंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल आरबीआई के नए रूल्स के पीछे की सोच और रेगुलेटरी रेशनल पर है। Consider the following statements regarding the regulatory rationale behind the Reserve Bank of India Prepayment Charges on Loans, Directions, 2025. Assertion A. The Reserve Bank of India identified the need to regulate prepayment charges to prevent regulated entities, RACE, from using restrictive clauses to deter borrowers from switching lenders. Reason A. Supervisory reviews indicated that all regulated entities, RACE, were already following a uniform, standardized practice regarding the levy of prepayment charges for MSEs. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी असर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। आरबीआई ने देखा कि बैंक ऐसे क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कस्टमर दूसरे बैंक में शिफ्ट न हो सके। मान लीजिए बैंक ने लोन एग्रीमेंट में ऐसी शर्त डाल दी कि लोन शिफ्ट करने पर भारी पेनल्टी लगेगी, तो ग्राहक फंस जाएगा। रीजन गलत इसलिए है क्योंकि सुपरवाइजरी रिव्यू में पाया गया कि सभी बैंकों की प्रैक्टिस अलग अलग थी, न कि यूनिफॉर्म। इंडिविजुअल फ्लोटिंग रेट लोन्स पर चार्जेज को लेकर इनमें से क्या सही है? इंडिविजुअल फ्लोटिंग रेट लोन्स पर चार्जेज को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Regarding the levy of prepayment charges on floating rate loans granted to individuals for purposes other than business, which of the following statements is correct? 1. Charges are permitted only if the loan exceeds rupees 50 lakh. 2. Charges are permitted only if the prepayment is made using funds borrowed from another lender. 3. And RE shall not levy any prepayment charges, regardless of the loan amount. 4. Charges are capped at 2% of the outstanding principal. Option A, 1 only. Option B, 2 and 4 only. Option C, 3 only. Option D, 1 and 2 only. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी रेगुलेटेड एंटिटी कोई भी चार्ज नहीं लगा सकती। इंडिविजुअल बोरोअर्स के लिए अगर लोन फ्लोटिंग रेट पर है और बिजनेस के लिए नहीं है, तो प्रीपेमेंट चार्ज पूरी तरह माफ है। मान लीजिए आपने घर के लिए फ्लोटिंग रेट लोन लिया है, तो बैंक आपसे कोई पेनल्टी नहीं ले सकता, चाहे लोन का अमाउंट कितना भी हो। एमएसए लोन्स के मामले में अलग अलग बैंकों और एनबीएफसी के लिए क्या लिमिट्स हैं? एमएसए लोन्स के मामले में अलग अलग बैंकों और एनबीएफसी के लिए क्या नियम और लिमिट्स हैं? Under the Reserve Bank of India, Prepayment Charges on Loans, Directions, 2025, regarding floating rate loans to micro and small enterprises, MSEs, which of the following statements correctly classifies the obligations of regulated entities? 1. Small finance banks and regional rural banks are prohibited from levying charges only on loans up to rupees 50 lakh. 2. NBFC middle layer entities are prohibited from levying charges on all loans, regardless of the amount. 3. Tier 4 primary, urban, cooperative banks must waive charges on all loans, regardless of the amount. 4. NBFC upper layer entities must waive charges on all loans, regardless of the amount. Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1, 3 and 4 only. Option D, all of the above.
सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और एनबीएफसी मिडिल लेयर के लिए 50 लाख तक की छूट है, जबकि टियर 4 कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसी अपर लेयर को सभी लोन्स पर चार्ज हटाना होगा। मान लीजिए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एमएसए को 60 लाख का लोन दिया, तो वो उस पर चार्ज लगा सकता है क्योंकि यह 50 लाख की सीमा से ऊपर है। अगर लोन फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों है तो क्या नियम लागू होगा? अगर लोन फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों है यानी डुअल रेट है, तो प्रीपेमेंट चार्ज का नियम कैसे लागू होगा? The prohibition on prepayment charges applies to dual or special rate loans, combination of fixed and floating rates, only if the loan is effectively on a floating rate at the specific time of prepayment. Option A, true. Option B, false. Option C, true, but only for housing loans. Option D, false. It applies only if the loan was originally sanctioned as floating. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी यह बात बिल्कुल सच है। डुअल रेट लोन्स में यह देखा जाता है कि जिस दिन आप पैसा चुका रहे हैं, उस दिन इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है या फिक्स्ड। मान लीजिए आपने ऐसा लोन लिया जो पहले 3 साल फिक्स्ड है। अगर आप चौथे साल में प्रीपे करते हैं जब वो फ्लोटिंग हो चुका है, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बंद करने पर चार्जेज कैसे कैलकुलेट होंगे? कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बंद करने पर चार्जेज के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Which of the following statements accurately reflect the rules for cash credit, CC, and overdraft, OD, facilities under the 2025 directions? 1. If prepayment charges are levied on closure before the due date, they must be calculated on the outstanding balance at the time of closure. 2. If prepayment charges are levied on closure before the due date, they must be calculated on an amount not exceeding the sanctioned limit. 3. No charges apply if the borrower intimates the intention not to renew before the stipulated period and the facility is closed on the due date. 4. No charges apply only if the borrower converts the facility into a term loan with the same lender. Option A, 1 and 3 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, 1 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। सीसी या ओडी बंद करने पर चार्ज सैंक्शन लिमिट से ज्यादा अमाउंट पर कैलकुलेट नहीं हो सकता। साथ ही अगर आप पहले ही बता दें कि रिन्यू नहीं करना और ड्यू डेट पर बंद करें, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। मान लीजिए आपकी लिमिट 50 लाख है, तो चार्ज कैलकुलेशन के लिए बेस अमाउंट 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का एक क्विक रिवीजन करते हैं। प्रीपेमेंट रूल्स का मकसद है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हटाना क्योंकि बैंकों की प्रैक्टिस अलग अलग थी। इंडिविजुअल फ्लोटिंग लोन्स पर कोई चार्ज नहीं, चाहे लोन कितना भी बड़ा क्यों न हो। एसएफपी के लिए 50 लाख तक छूट, जबकि बड़े एनबीएफसी के लिए पूरी छूट है। डुअल रेट लोन्स में प्रीपेमेंट के वक्त रेट फ्लोटिंग होने पर ही चार्ज माफ होगा। सीसी या ओडी बंद करने पर चार्ज लिमिट से ज्यादा नहीं, रिन्यू न करने पर छूट। प्रीपेमेंट के लिए फंड्स का सोर्स क्या है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या प्रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल किए गए फंड्स के सोर्स से चार्जेज पर कोई फर्क पड़ता है? Consider the following statements regarding the source of funds for prepayment. Assertion A. Regulated entities, RACE, are permitted to levy prepayment charges if the borrower repays the loan using funds borrowed from another bank, takeover. Reason R. The directions on waiving prepayment charges apply, irrespective of the source of funds used for prepayment. Option A. Both A and R are true, and R explains A.
Option B, both A and R are true, but R does not explain A. Option C, A is true, but R is false. Option D, A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी असर्शन गलत है, लेकिन रीजन सही है। आरबीआई के नए निर्देश साफ कहते हैं कि प्रीपेमेंट के लिए पैसा कहीं से भी आए, बैंक चार्ज नहीं लगा सकता। मान लीजिए आपने दूसरे बैंक से सस्ता लोन लेकर पुराना लोन चुकाया, तो इसे टेकओवर कहते हैं और इस पर भी पेनल्टी नहीं लग सकती। अगर बैंक खुद आपसे लोन बंद करने को कहे, तो क्या चार्ज लगेगा? अगर बैंक खुद आपसे लोन प्रीपे करने को कहे, तो क्या चार्ज लगेगा? Under the Reserve Bank of India, prepayment charges on loans, directions, 2025, what is the policy regarding prepayment charges when the prepayment is effected at the instance of the regulated entity, RE? Option A, charges are capped at 1% of the outstanding principal. Option B, charges are applicable only if the loan is taken over by another bank. Option C, and RE shall not levy any charges. Option D, charges are waived only for priority sector lending. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर लोन बंद करने की पहल बैंक या एनबीएफसी ने की है, तो वो ग्राहक से पेनल्टी नहीं मांग सकते। सोचिए, अगर बैंक को अपनी पॉलिसी बदलने के कारण आपका लोन बंद करना पड़े, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसलिए चार्ज भी नहीं लगेगा। ये चार्जेज लागू होंगे या नहीं, यह जानकारी किन दस्तावेजों में होनी चाहिए? प्रीपेमेंट चार्जेज लागू होंगे या नहीं, यह जानकारी किन दस्तावेजों में साफ साफ लिखी होनी चाहिए? The directions mandate that the applicability or non-applicability of prepayment charges must be clearly disclosed in which of the following documents? 1. The sanction letter. 2. The loan agreement. 3. The key fact statement, KFS, where applicable. 4. The RE's annual report. Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1, 2 and 3 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सैंक्शन लेटर, लोन एग्रीमेंट और की फैक्ट स्टेटमेंट, केएफएस। इन तीनों जगहों पर यह डिस्क्लोज करना जरूरी है। मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं, तो केएफएस में एक नजर डालकर आप पता लगा सकते हैं कि प्रीपेमेंट पर चार्ज है या नहीं। क्या बैंक पुराने माफ किए गए चार्जेज को प्रीपेमेंट के वक्त दोबारा मांग सकता है? क्या बैंक पुराने माफ किए गए चार्जेज को प्रीपेमेंट के वक्त दोबारा मांग सकता है? Consider the following statements regarding retrospective charges. Assertion A, and RE is prohibited from levying charges retrospectively at the time of prepayment if those charges were waived off earlier. Reason R, the waiver of charges during the loan tenure is considered a permanent concession under the Reserve Bank of India, Prepayment Charges on Loans, Directions, 2025. Option A, both A and R are true, and R explains A. Option B, both A and R are true, but R does not explain A. Option C, A is true, but R is false. Option D, A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दोनों बातें सही हैं। अगर बैंक ने लोन के दौरान कोई फीस माफ कर दी थी, तो लोन बंद करते वक्त वो उसे रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछली तारीख से नहीं मांग सकता। एक बार दी गई छूट परमानेंट होती है। चलिए अब आखिरी कुछ सवालों का क्विक रिवीजन करते हैं। पैसे का सोर्स चाहे दूसरा बैंक हो, प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। अगर बैंक खुद लोन बंद करवाए, तो कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी।
चार्जेज की जानकारी सैंक्शन लेटर, एग्रीमेंट और केएफएस में होनी चाहिए। पहले माफ की गई फीस को लोन बंद करते वक्त दोबारा नहीं मांगा जा सकता। तो दोस्तों, आज हमने आरबीआई के 2025 प्रीपेमेंट डायरेक्शंस को अच्छे से समझा। इंडिविजुअल और एमएसए के लिए अलग अलग लिमिट्स और डॉक्यूमेंटेशन रूल्स पर खास ध्यान दें। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सेशन मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।